Good morning, students. Myself, Rignesh Tambakuwala, and today we are going to start with the session number 3 in computer class 9 CBSE. So, today, what we are going to learn how to talk with about one family. You can see in this PDF that what is the relevant knowledge. Our family is made up of relation, and these are some of the relation: father, mother, sister, brother, grandfather, grandmother, uncle, aunt, and cousin. So, using these relations, we used to we used to talk with them. See, now here is an exercise given. Practice making simple sentence using the third person singular rule. What is the third person singular rule? Third person singular rule means a person who is not present at a particular conversation. जो पर्सन वहाँ पे मौजूद नहीं है कन्वर्सेशन में, उसके बारे में बात करना है आपको, ठीक है? और it's a singular person. It is a single person, not a bunch of person, right? Say for example, the first example, I have a brother and a sister. Single brother and single sister, not brothers and sister. It's a brother and a sister, means that is a third person singular rule. Now who is I? I means the person who is talking to someone else. I am talking to someone else about my brother and sister. So my brother and sister are singular person. So that's why it's called third person singular rule. The second exercise, my parents work at the same office. Now parents, see, parents is a single entity. If I say my father and my mother, then there are two persons. But when I say my parents, means it's a single entity, it's a single person rule. So it's why we are using my parents. My grandmother and grandfather live with us. My grandmother and grandfather live with us. My aunt teaches at a school. My aunt teaching at a school. Why they write a school? Because a means a single entity. Using this exercise, you have to solve the following example. Okay, we have already done this session, but still I have given you a revision of this session, right? Now we will move towards the today's session, that is session number 4, telling the time. The relevant knowledge. What is the relevant knowledge related to telling a time? Quarter to 3 means 2.45. Quarter to 3 means, see, our 1 hour is being divided into 4 quarters. 1 hour is divided into 4 quarters. So when we are say quarter to 1, right? So means that we have 15 minutes completed. When we say quarter to 3, that means 45 minutes. Quarter to 2 means 30 minutes. So in this way, we are using quarters for 4 section, और each section is of 15 minutes. हर एक सेक्शन जो होता है ना वो 15 मिनट्स का होता है, तो उसे क्वार्टर कहते हैं, ठीक है? 15 मिनट्स का एक क्वार्टर रहता है. सो यू अंडरस्टैंड जस्ट राइटिंग लाइक दिस, क्वार्टर टू 3. व्हाट इज मीन विद क्वार्टर टू 3? क्वार्टर टू 3 मतलब 3 बजने से एक क्वार्टर पहले. क्वार्टर टू 3 मतलब 3 बजने से एक क्वार्टर पहले. तो 3 बजने से एक क्वार्टर पहले क्या होगा? 2:45. से क्वार्टर पास्ट टू. पास्ट और प्रेजेंट दोनों में अलग है. पास्ट मतलब वो खत्म हो गया, मतलब 2 बजने के बाद का पहला क्वार्टर, मतलब 2:15. हाफ पास्ट 4 मतलब 4 बजने के बाद हाफ. 4 बजने के बाद हाफ क्या रहता है? 30 मिनट्स. सो 4:30. 25 to 2. See, 25 to 2. What is 25 to 2? Means जो 2 बजने में अभी भी 25 मिनट्स बाकी है. 2 बजने में अभी भी 25 मिनट्स बाकी है. So in this way, write the exercise given below. You have to do it by your own self. Use the above understanding knowledge. जैसे कि आप देख सकते हो, मैं आपको एक देता हूँ बी वाला. ए वाला मैं आपके लिए रख रहा हूँ, बी वाला मैं आपको दे रहा हूँ. जैसे 12 बजने में अभी 15 मिनट बाकी है, तो हम उसके अंदर क्या लिखेंगे? क्वार्टर टू 12. क्या लिखना है बी में? क्वार्टर टू 12 मतलब 12 बजने में अभी एक क्वार्टर बाकी है, एक 15 मिनट
बाकी है, उसी तरह से आपके बाकी के भी आपको नोटबुक में लिखने हैं. देन गोइंग टू द सेशन 5. व्हाट इज सेशन 5? फ्रेमिंग क्वेश्चंस. Framing questions means relevant knowledge. Relevant knowledge. While framing questions, the sentences should begin with the question words. See list of question words given below. Framing questions मतलब जो भी सेंटेंस है उसको क्वेश्चन में कैसे फ्रेम किया जाता है. तो नीचे कुछ क्वेश्चन के लिस्ट दिए गए हैं, क्वेश्चन वर्ड्स के लिस्ट दिए गए हैं, उसको हमें यूज़ करना है. से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है कि विच स्टूडेंट was absent yesterday? Is he present today? Did he bring his leave report today? These are certain words, these are certain examples, right? Say for example, the first one you can see, which student was absent yesterday? ये एक सवाल रहता है. ऐसा ये भी एक सवाल बनता है, is he present today? Did he bring his leave report today? Right? All the meanings are same. All the meanings are same, but the way of answering question, the way of framing question is different. Say, read aloud the following sentence. I am Meena. My name is Meena. I am from Delhi. I am here to meet a friend. I came by bus. Yes, I am an Indian. No, I will not shop with my friend. Yes, I have called her up. Right, these are the sentence. Now study the list of question words given below. How to give question words? आपको क्वेश्चन, जैसे कि कोई भी अगर सेंटेंस है तो अब जैसे कि आई एम मीना, तो उस पर क्वेश्चन क्या बनता है, हु आर यू, तो उसका आंसर आता है आई एम मीना. तो उसी तरह से ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं और उसको किस तरह से यूज़ करना है उसके एग्जाम्पल दिए गए हैं आपको. अब देख सकते हैं, जो पहला है what are you doing tonight और what are we having for dinner. तो ये what है, what मतलब क्या है, क्या का मतलब होता है what. when means कब करना है ये. when we are leaving, हम कब बाहर जा रहे हो. when is the match starting, मैच कब स्टार्ट हो रहा है. तो कब जब आता है there we use when. where मतलब कहाँ. where is my diary, मेरी डायरी कहाँ है. Then which one is your book, कौन सी. which one मतलब कौन सी आपकी बुक है. who मतलब कौन. who is that girl, वो लड़की कौन है. who is that girl. who are you. राइट. जैसे पहले सेंटेंस में मैंने बताया कि आई एम मीना, तो वो उसका क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन ने पूछा होगा उसे कि हु आर यू, तो उसने जवाब दिया होगा आई एम मीना. देन whom, with whom did you go to see the movie. whom अब प्लूरल में आ जाता है, हु सिंगुलर में आता है, हुम जो होता है वो प्लूरल में आता है. वो किसी और के साथ अगर आपको ज्वाइन करना हो तो उसके लिए हुम का यूज़ किया जाता है. फिर हुज, किसका. हुज मतलब किसका है ये. आप बोलते हो ना कि ये पेंसिल किसकी है, मैं बोलता हूँ कि भाई ये चाबी गुम गई थी मुझे मिली है, ये किसकी चाबी है, तो हुज कीज आर दिस. राइट. तो हुज, तो उस तरह से ये सारे वर्ड्स हैं. दूसरे और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे कि वाई. ठीक है, वाई मतलब क्या. वाई मतलब क्यों आपने ऐसा किया. वाई यू हैव डन दिस थिंग. हाउ, कैसे. हाउ आर वी गोइंग टू टेल अबाउट द सिचुएशन, हम कैसे बताएंगे सिचुएशन के बारे में. देन आर यू आकांक्षा सिस्टर. अब आर जो है वैसे तो ये वर्ब भी है, लेकिन उसे आप एक क्वेश्चन वर्ड्स की तरह भी यूज़ कर सकते हो कि जब आपको ऐसा पूछना है कि क्या आप आकांक्षा की दोस्त है, आकांक्षा की सिस्टर है, तो उसमें हम आर का यूज़ कर सकते हैं, प्रोनाउंस कर सकते हैं. उसी तरह से इज़, एम, हैव, हैज़, डू, डज, कैन, कुड, विल, वुड, शॉल, शुड, मे, ये सारे वर्ड्स जो है वो सारे क्वेश्चंस वर्ड्स है जिसको आपको रीड करना है. ये मैंने आगे के रीड नहीं किए, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी छोड़ देना है, आपको इसको सारे को रीड करना है. देन आफ्टर वी आर गोइंग फॉरवर्ड, going to the read the following sentence. Oh, I am late already. What is the time? Now see, these are the sentences. I am just reading the sentences. Oh, I am late already. What is the time? When there is dots given after already means you have to put a pause.
आपको कुछ टाइम के लिए पॉज कर देना है, वो सेंटेंस को बंद कर देना है और फिर दूसरा सेंटेंस बोलना है. एक्सक्यूज मी, कैन यू प्लीज टेल मी द टाइम. अब जब आप किसी को बुलाते हो तो तुरंत नहीं बोलते. आपने उसे बुलाया एक्सक्यूज मी, फिर जैसे ही वो घूमता है या फिर जैसे ही वो आपके तरफ ध्यान देता है फिर आप उसको क्वेश्चन करते हो, तब बीच का जो पार्ट है उसको पॉज करते हैं, तो इसलिए डॉट यूज करते हैं. हे, व्हाट टाइम डज द मूवी स्टार्ट? व्हेन डू वी हैव टू मीट मिस्टर डिसोसा? व्हाट टाइम इज द अपॉइंटमेंट? व्हेन इज he going to come? Questions usually starts with the words what, when, how, where, why, is, can, do, did, will, would, could, etc. And that they are always placed at the beginning of the sentence. So we cannot say like this. Now, as we know that when we are asking the question, all the question words will be put at first only. We cannot put like this. See in the example, the time is like what? We can say what is the time, that is okay, but we can say like this, the time is like what? We are putting the question word at the end, that it is not a proper sentence, it is not a perfect sentence. Understand? So these are the question, this is the example that this type of words we cannot say. Sometimes if we doesn't able to speak English fluently, what we do, we will break the whole sentence in an improper way. So this is that improper way. If the questions pertains to ask for time, they will be typically begin with when or what time. And can you tell me? If the question is asking for time, right? अगर आप किसी को समय पूछना चाहते हो, टाइम पूछना चाहते हो, तो मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो या तो when से पूछे जाते हैं, मतलब when we getting the पेपर, तो ये एक टाइम पूछा गया है, हमें पेपर कब मिलेगा, तो आपको पेपर 9 बजे मिलेगा, मीन्स यू आर आस्किंग द टाइम, तो इसके लिए आप व्हेन का यूज़ कर सकते हो. उसके बाद व्हाट इज़ द टाइम, टाइम क्या हुआ है, तो उसका लिए क्या का यूज़ कर सकते हो, व्हाट का. और कैन यू टेल मी द टाइम, क्या आप मुझे अपना टाइम, क्या आप मुझे समय बता सकते हो. तो इस तरह से ये सारे वर्ड्स टाइम के लिए स्पेशली यूज होते हैं, ये सारे वर्ड्स. देन if the questions pertains to ask for time, they typically begins with when, what, and can you tell me. Example, what is the time and where is the time, like this. Okay, now the exercise. This exercise you have to do by yourself in the book. Frame a question for the following situation. Say there is a situation given to you and you have to frame a question on that situation. आपको एक सिचुएशन दी गई है, एक लाइन दी गई है, जैसे कि फर्स्ट वन है, यू वांट टू आस्क अ पर्सन हिज और हर नेम. आपको किसी को उसका हिज और हर नेम, उसका या उसकी नाम पूछना है, तो आप कैसे पूछोगे? व्हाट विल बी द क्वेश्चन? सो द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, व्हाट इज योर नेम, और व्हाट इज, दैट वाज द सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है. इट इज ऑल्सो नॉट बेस्ड ऑन जेंडर ऑल्सो, बिकॉज हिज या हर है, लेकिन क्वेश्चन एक ही रहेगा, व्हाट इज योर नेम. उसमें आप जेंडर नहीं डाल सकते, व्हाट इज शीज नेम और ही नेम, ऐसा कुछ नहीं आता. व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो ये क्वेश्चन मार्क हुआ. ये आपके सिचुएशन पर मैंने एक क्वेश्चन फ्रेम किया. तो उसी तरह से बाकी के सारे सिचुएशन पे आपको खुद को क्वेश्चन फ्रेम करके आपको एक्सरसाइज में लिख के मुझे दिखाना है. गोइंग अहेड, द नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द एरर्स एंड करेक्ट द क्वेश्चन बिलो. अब नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, अगर वो गलत है तो आपको सुधार के उसे बताना है, और नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं. कैन यू डू द वर्क फॉर मी, क्या आप मेरी जगह पे काम कर सकते हो, क्या ये सही लिखा है या नहीं लिखा है, ये आपको मुझे बताना है, एरर्स है या नहीं. कैन यू डू द वर्क फॉर मी, तो क्या ये सही है, कैन यू डू द वर्क फॉर मी. तो कैन यू डू द वर्क फॉर मी, ये गलत है. कैन यू डू वर्क फॉर मी, द नहीं आएगा. क्या तुम मेरे लिए काम करोगे, बस वही आएगा. द कब आता है, कब, जब एक काम करना है. आप किसी को ये पूछ रहे हो कि भाई मेरे लिए सिर्फ एक काम करना है, तो उसके लिए ए यूज़ कर सकते हो, द यूज़ कर नहीं सकते. तो इसलिए कैन यू डू वर्क फॉर मी, आंसर ये आएगा. उसको एरर को सॉल्व करके आपको वापस लिखना है. तो ये सारे क्वेश्चंस भी आपको खुद से बना के लिखने हैं. तो ये रही आपकी एक्सरसाइज, और उसके बाद जो असेसमेंट वर्क है वो भी आपको कंप्लीट करना है. तो दिस इज ऑल अबाउट योर सेशन 5, राइट. सो टुडे वी हैव talk about session 3, 4 and 5. In the next
नेक्स्ट सेशन में हम सेशन 6 स्टार्ट करेंगे। इसके आगे जो मैंने आपको एक वीडियो भेजा था जिसमें आपको सेशन 6, 7, 8, 9, 10 वो सब बताया गया था, एक सर ने आपको वीडियो दिखाया था, वो जस्ट आपके नॉलेज के लिए था। उसमें से आपको होमवर्क नहीं करना, अगर कर दिया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर नहीं किया है तो अभी नहीं करना है। वो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बेस्ड था। मैं सारे सेशंस खुद से आपको इस तरह से रिकॉर्ड करके भेजूंगा और उसी के बेस पर आपको काम करना है। ओके, थैंक यू एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट पार्ट। हैव अ ग्रेट डे।